Hello students, today in my PPT I am going to discuss a very important topic, that is right to education. We all know that since 2010 right to education has become one of the fundamental right that has been guaranteed to the Indian people directly by the Constitution. Before becoming fundamental right to education was included in the directive principle of state policy. If you will read Article 45 of directive principle, it's mentioned in Article 45 that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So this was the directive principle given in Article 45, but now this directive principle has been transformed into fundamental rights in 2010. Okay. So what is the provision of the right to education? The first point is that this right to education declares that the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years. मतलब सरकार अब सारे बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, करना पड़ेगा. ओके. सेकंड थिंग इज दैट this provision makes only elementary education a fundamental rights, not higher or professional education. That means कि up to class 8 right to education is a fundamental right. Okay, higher or professional education does not comes under right to education. मतलब सरकार सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है. हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन तो आपको खुद हासिल करना पड़ेगा. सरकार आपको क्लास 8 तक पढ़ा देगी फ्री, उसके बाद तो फिर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. तो दैट मीन्स कि ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन इज कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन. नाउ दिस राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट थ्रू द प्रोविजन which was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. तो by 86th Constitutional Amendment Act 2002, right to education was included in the list of what? In the list of fundamental right. तो फंडामेंटल राइट बनने से पहले राइट टू एजुकेशन क्या कहाँ इंक्लूडेड था? ये इंक्लूडेड था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में. किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में. ओके. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट टू एजुकेशन? सी, दिस अमेंडमेंट, this right to education is a major milestone in the country's aim to achieve education for all. In order to increase the literacy rate, in order to enhance the educational awareness among the people, the right to education was given to all the citizens. And when the right to education act was passed, the government described this step as the dawn of the second revolution in the chapter of citizens' right. So I said earlier that this amendment changed the subject matter of Article 45 in directive principle. मतलब फंडामेंटल पहले राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल था आर्टिकल 45 में, अब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया. ओके. और this right to education was approved by the cabinet on 2nd July 2009. Rajya Sabha passes the bill on 20th July 2009. Lok Sabha passed it on 4th August 2009. President gave his assent on 3rd September 2009 and on 1st April 2010. From 1st April 2010, है ना, you should remember the date. From 1st April 2010, the right to education was implemented. See, right to education act 2009, इसको 2009 इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2009 को इसको अप्रूवल मिला था कैबिनेट की तरफ से. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इट हैज कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2010. लेकिन 2009 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको अप्रूवल मिला था 2009
2009 में। तो नाउ एजुकेशन अप टू एलिमेंट्री लेवल हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड एजिंग 6 to 14 ईयर्स। एलिमेंट्री लेवल पे अब ये राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। ओके, सो द बेसिक feature of the right to education is that now it is the duty of the state to provide free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 years. But apart from this, right to education had some more provisions. ठीक है, राइट टू एजुकेशन में कुछ और भी प्रोविजन है, जैसे पहला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकंड ये है कि देयर विल बी 25% रिजर्वेशन फॉर पुअर चिल्ड्रेन इवन इन प्राइवेट एंड माइनॉरिटी स्कूल। मतलब प्राइवेट और माइनॉरिटी स्कूल में कम से कम 25% सीटें रिजर्व होगी। किसके लिए? वो बच्चों के लिए जो बीपीएल है। मतलब प्राइवेट और माइनॉरिटी स्कूल्स जो है वो 25% बीपीएल स्टूडेंट्स को का एडमिशन लेंगे और उनको फ्री में क्लास 8 तक पढ़ाएंगे। उनका फीस सरकार दे देगी प्राइवेट स्कूल को। थर्ड, अनट्रेन्ड स्कूल टीचर्स मस्ट गेट रिक्विजिट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 ईयर्स। अगर किसी भी सरकारी स्कूल में अनट्रेन्ड टीचर है तो उसको तुरंत डिग्री लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा 5 साल के अंदर, ट्रेंड होकर उसको फिर वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। मतलब अनट्रेन्ड स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टीच इन द गवर्नमेंट स्कूल अंडर राइट टू एजुकेशन। ओके, untrained school teachers are not allowed to teach in the government school under right to education. Next, school get 3 years to achieve certain infrastructure standard or their recognition will be cancelled. 3 साल के अंदर स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, उसको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन के लिए चाहिए वो सब बिल्ड करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर उस स्कूल के रिकग्निशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब एवरी स्कूल हैज़ टू बिकम अप टू डेट in infrastructural standard so that they could effectively implement the right to education. And last, expenses will be shared between center and state. मतलब ये जो सरकार फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी ना, तो सरकार तो अपने तरफ से फीस देगी बच्चों को तो फीस देना नहीं पड़ेगा। तो 8 क्लास तक सरकार खुद पैसा लगाएगी उनके एडमिशन में। तो सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं करेगी, है ना। जो खर्च होगा वो सेंटर और स्टेट मिलके वो खर्च को पूरा करेंगे। मतलब वाट एवर एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट इनकर्ड अंडर राइट टू एजुकेशन, दैट एक्सपेंसेस विल बी मेड बोथ बाय द सेंट्रल एज वेल एज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी शेयर्ड बाय बिटवीन द सेंटर एंड दैट ऑफ द स्टेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पूरा खर्च नहीं करेगी बच्चों के एजुकेशन में, स्टेट भी अकेले पूरा खर्च नहीं करेगी, दोनों मिल के काम करेंगे। इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर दे विल वर्क टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट दिस फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ओके, तो आई होप दिस राइट टू एजुकेशन विल बिकम क्लियर टू यू। थैंक यू।